کہتے ہیں کہ اسٹاک ایکسچینج پر حملے کی ذمہ داری کالعدم BLA نے قبول کر لی. رعب ملوث ہو سکتی ہے. کراچی میں امن و امان کو کھٹکتا ہے. سلیپر سیلز کے بغیر ایسا حملہ ممکن نہیں تھا. دہشت گردوں کو عمارت میں داخل ہونے کا موقع نہیں ملا. برآمد سامان سے ظاہر ہوتا ہے کہ دہشت گرد عمارت میں گھس کر لوگوں کو یرغمال بنا کر قتل کرنا چاہتے تھے. حملے کا مقصد سرمایہ کاروں کو ڈرانا تھا، لیکن دہشت گرد مقصد حاصل کرنے میں ناکام رہے. ہم عوام کو نقصان نہیں پہنچنے دیں گے. بروقت کارروائی سے دہشت گردی کی بڑی کوشش ناکام بنا دی. رینجرز اور سندھ پولیس نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے مختصر وقت میں دہشت گردوں کا خاتمہ کر دیا. ملک میں دیر پا امن شہدا کی بڑی. وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں کہ سیکیورٹی اداروں کے جوانوں نے بہادری سے دشمن کا مقابلہ کیا. قوم کو بہادر بیٹوں پر فخر ہے. صدر مملکت کہتے ہیں کہ پاکستان دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے لیے پرعزم ہے. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا کہنا ہے کہ یہ واقعہ ملک کی سلامتی اور معیشت پر حملے کے مترادف ہے. پولیس اور رینجرز کی طرف سے بروقت کارروائی قابل تعریف ہے. تمام قانون نافذ کرنے والے اداروں کو مزید چوکس رہنے کی ہدایت. نہ پہلے بند ہوا نہ اب ہوگا. قانون نافذ کرنے والے اداروں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. CEO فاروق خان نے کہا اس طرح کی بزدلانہ کارروائیاں ہمارے حوصلے پست نہیں کر سکتے. حملے کے دوران ایک لمحے کے لیے بھی ٹریڈنگ کا. پاکستان اسٹاک ایکسچینج پر حملہ ملک کی معیشت کے لیے تباہ کن ثابت ہو سکتا تھا. مسلم لیگ نون کی رہنما مریم نواز کہتی ہیں کہ اسٹاک ایکسچینج پر حملہ مکمل منصوبہ بندی کے ساتھ کیا گیا. دھرتی کے بہادر بیٹوں کو سلام جنہوں نے دہشت گردی کا منصوبہ ناکام بنا دیا. قائد حزب اختلاف شہباز شریف کا بھی دہشت گرد حملہ ناکام بنانے پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین. شہداء کے درجات کی بلندی کی دعا. سابق صدر آصف زرداری کہتے ہیں کہ دہشت گردوں کے منصوبہ سازوں کو ہر صورت میں بے نقاب کر کے انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے. وزیر اطلاعات پاکستان کو نقصان پہنچانے کے در پر ہیں. بھارت چین سے جوتے کھانے کے بعد خفت مٹانے کے لیے مہروں کو ترتیب دے رہا ہے. فیاض الحسن چوہان کے وزیر اعظم عمران خان اور ان کی پوری ٹیم کو وفاقی بجٹ منظور ہونے پر مبارکباد. کہا متحدہ اپوزیشن کا ایڑی چوٹی کا زور کسی کام نہ آ سکا. وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی قیادت میں پنجاب کا بجٹ بھی تزک و احتشام کے ساتھ منظور ہوگا. قومی اسمبلی میں آئندہ مالی سال کا بجٹ منظور کر لیا گیا. اپوزیشن کی کٹوتی کی تجاویز مسترد. بجٹ کی منظوری پر اپوزیشن کا ایوان میں احتجاج. حکومت مخالف بلیک کارڈ اٹھانے پر اسپیکر کا اظہار برہمی. بجٹ کی منظوری پر حکومتی اراکین کی وزیر اعظم کو مبارکباد. حکومت اور اپوزیشن اراکین کے پیٹرولیم مصنوعات میں اضافہ واپس لینے کی مشترکہ قرارداد جمع کرا دی گئی. بلاول بھٹو زرداری کا پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ چیلنج کرنے کا اعلان. کہتے ہیں وزیر اعظم نے آٹے، چینی اور ماسک کا نوٹس لیا تو یہ چیزیں مزید مہنگی ہو گئیں. وزیر اعظم مہربانی کریں کسی چیز کا نوٹس نہ لیں کہ الیکٹرک زائد بلنگ کر کے عوام کا خون چوس رہی ہے. خواجہ آصف نے کہا کہ بجٹ میں سرکاری ملازمین کی تنخواہیں بڑھا دیتے تو کون سی قیامت آ جاتی. لوگ چلا رہے ہیں، یہاں کسی کو پرواہ ہی نہیں. احسن اقبال نے کہا کہ 2018 میں ایسی حکومت آئی جس کے لیڈر نے کبھی ایک یوسی تک نہ چلائی. ماضی کی تمام کامیابیوں کو صفر کرنے کے لیے مستقبل کے ساتھ کھیلا گیا. بھٹو کو مناظرے کا چیلنج. بولے بھٹو کی اصل وارث زرداری نہیں فاطمہ بھٹو ہے. فاطمہ بھٹو کی کتاب پڑھ لیں آنکھیں کھل جائیں گی. مراد سعید کی تقریر کے دوران اپوزیشن کا شور شرابہ. واک آؤٹ. پاکستان نے گردوارہ کرتارپور کو زائرین کے لیے کھول دیا. ملکی اور غیر ملکی سکھ یاتریوں کی بڑی تعداد میں کرتارپور آمد. بھارتی حکومت کی ڈھٹائی برقرار. سکھ یاتریوں کو پاکستان آنے سے روک دیا. میں کورونا کے مزید 3557 کیسز رپورٹ.
49 अफराद जाँ बहक। मरीज रिपोर्ट। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार का एक और बड़ा फैसला। पंजाब के अस्पतालों में ओपीडीज और ऑपरेशन थिएटर्स मुकम्मल फंक्शनल करने के लिए हतमी प्लान तलब। उस्मान बुज़दार कहते हैं कि महकमा सेहत 10 रोज़ के अंदर इक़दाम करे। ओपीडीज और ऑपरेशन थिएटर्स मुकम्मल फंक्शनल ना होने से मरीजों को परेशानी का सामना है। सूबे में कोरोना के केसेस की तादाद में कमी हो रही है। हेल्थ प्रोफेशनल्स कोरोना वबा में मिसाली काम कर रहे हैं। आमदन से जायद असासे और मनी लॉन्ड्रिंग केस। लाहौर हाई कोर्ट ने शहबाज शरीफ की अबूरी जमानत में 7 जुलाई तक तौसी कर दी। अदालत का 2 जुलाई को शहबाज शरीफ को इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ से कोरोना टेस्ट करवाने का हुक्म। इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ एंड साइंसेज के डायरेक्टर को शहबाज शरीफ की कोरोना की रिपोर्ट अदालत ने पेश करने की हिदायत। फर्नेस ऑयल की सप्लाई बहाल होने के बावजूद के इलेक्ट्रिक कराची के अवाम को रिलीफ देने में नाकाम। कराची में 10 से 12 घंटे की गैर एलानिया लोड शेडिंग जारी। शहरियों को न दिन का आराम न रात को सुकून। ईंधन मिलने से बिजली की फराहमी बेहतर हो गई है। रात को बिल्कुल लोड शेडिंग नहीं होती कि इलेक्ट्रिक का दावा। और अमरीकी ड्रोन हमले में जनरल कासिम सुलेमानी का कत्ल। ईरान ने अमरीकी सदर ट्रंप के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। ईरान का इंटरपोल से वारंट पर अमल दरामद का मुतालबा। कहते हैं कि स्टॉक एक्सचेंज पर हमले की जिम्मेदारी कलअदम BLA ने कबूल कर ली। रॉ मुलव्विस हो सकती है। कराची में अमन व अमान को खटकता है। स्लीपर सेल्स के बगैर ऐसा हमला मुमकिन नहीं था। दहशतगर्दों को इमारत में दाखिल होने का मौका नहीं मिला। बरामद सामान से जाहिर होता है कि दहशतगर्द इमारत में घुसकर लोगों को यरगमाल बनाकर कत्ल करना चाहते थे। हमले का मकसद सरमायाकारों को डराना था, लेकिन दहशतगर्द मकसद हासिल करने में नाकाम रहे। हम आवाम को नुकसान नहीं पहुंचने देंगे। बर्वा कार्रवाई से दहशतगर्दी की बड़ी कोशिश नाकाम बना दी। रेंजर्स और सिंध पुलिस ने बर्वा कार्रवाई करते हुए मुख्तसर वक्त में दहशतगर्दों का खात्मा कर दिया। मुल्क में देरपा अमन शोहदा की बड़ी। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं कि सिक्योरिटी इदारों के जवानों ने बहादुरी से दुश्मन का मुकाबला किया। कौम को बहादुर बेटों पर फख्र है। सदर मुमलिकत कहते हैं कि पाकिस्तान दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि ये वाक़या मुल्क की सलामती और मईशत पर हमले के मुतरादिफ है। पुलिस और रेंजर्स की तरफ से बर वक्त कार्रवाई काबिल तारीफ है। तमाम कानून नाफिज करने वाले इदारों को मजीद चौकस रहने की हिदायत। न पहले बंद हुआ न अब होगा। कानून नाफिज करने वाले इदारों को खराजे तहसीन पेश करता हूँ। CEO फारूक खान ने कहा, इस तरह की बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ हमारे हौसले पस्त नहीं कर सकते। हमले के दौरान एक लम्हे के लिए भी ट्रेडिंग का। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर हमला मुल्क की मईशत के लिए तबाह कुन साबित हो सकता था। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज कहती हैं कि स्टॉक एक्सचेंज पर हमला मुकम्मल मनसूबा बंदी के साथ किया गया। धरती के बहादुर बेटों को सलाम, जिन्होंने दहशतगर्दी का मंसूबा नाकाम बना दिया। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ का भी दहशतगर्द हमला नाकाम बनाने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। शोहदा के दराजात की बुलंदी की दुआ। साबिक सदर आसिफ जरदारी कहते हैं कि दहशतगर्दों के मंसूबा साजों को हर सूरत में बेनकाब करके इंसाफ के कटहरे में लाया जाए। वजीर इत्तलात पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के दर पर है। भारत चीन से जूते खाने के बाद खिफत मिटाने के लिए मोहरों को तरतीब दे रहा है। फयाजुल हसन चौहान के वजीर आजम इमरान खान और उनकी पूरी टीम को विफाकी बजट मंजूर होने पर मुबारकबाद। कहा, मुत्तहदा अपोजिशन का एड़ी चोटी का जोर किसी काम ना सका। वजीर आला उस्मान बुज़दार की क़यादत में पंजाब का बजट भी तस्को एहतशाम के साथ मंजूर होगा।
कौमी असम्बली में आइंदा माली साल का बजट मंजूर कर लिया गया। अपोजिशन की कटौती की तजावीज़ मुस्तरद। बजट की मंजूरी पर अपोजिशन का ऐवान में एहतजाज। हुकूमत मुखालिफ ब्लैक कार्ड उठाने पर स्पीकर का इजहार बरहमी। बजट की मंजूरी पर हुकूमती अरकान की वज़ीर आज़म को मुबारकबाद। हुकूमत और अपोजिशन अरकान के पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा वापस लेने की मुश्तरका करारदाद जमा करा दी गई। बिलावल भुट्टो जरदारी का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा चैलेंज करने का ऐलान। कहते हैं वज़ीर आज़म ने आटे, चीनी और मास्क का नोटिस लिया तो ये चीजें मजीद महंगी हो गईं। वज़ीर आज़म मेहरबानी करें, किसी चीज का नोटिस न लें कि इलेक्ट्रिक जायद बिलिंग करके आवाम का खून चूस रही है। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि बजट में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें बढ़ा देते तो कौन सी क़यामत आ जाती। लोग चिल्ला रहे हैं, यहाँ किसी को परवाह ही नहीं। हसन इकबाल ने कहा कि 2018 में ऐसी हुकूमत आई जिसके लीडर ने कभी एक यूसी तक न चलाई। माजी की तमाम कामयाबियों को सिफर करने के लिए मुस्तकबिल के साथ खेला गया। भुट्टो को मुनाजरे का चैलेंज। बोले भुट्टो की असल वारिस जरदारी नहीं, फातिमा भुट्टो है। फातिमा भुट्टो की किताब पढ़ लें, आंखें खुल जाएंगी। मुराद सईद की तकरीर के दौरान अपोजिशन का शोर शराबा, वॉकआउट। पाकिस्तान ने गुरुद्वारा करतारपुर को जायरीन के लिए खोल दिया। मुल्की और गैर मुल्की सिख यात्रियों की बड़ी तादाद में करतारपुर आमद। भारतीय हुकूमत की ढिठाई बरकरार। सिख यात्रियों को पाकिस्तान आने से रोक दिया। में कोरोना के मजीद 3,557 केसेस रिपोर्ट। 49 अफराद जाँ बहक। मरीज रिपोर्ट। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बज़दार का एक और बड़ा फैसला। पंजाब के अस्पतालों में ओपीडीज और ऑपरेशन थिएटर्स मुकम्मल फंक्शनल करने के लिए हतमी प्लान तलब। उस्मान बज़दार कहते हैं कि महकमा सेहत 10 रोज़ के अंदर इक़दामात करे। ओपीडीज और ऑपरेशन थिएटर्स मुकम्मल फंक्शनल ना होने से मरीजों को परेशानी का सामना है। सूबे में कोरोना के केसेस की तादाद में कमी हो रही है। हेल्थ प्रोफेशनल्स कोरोना वबा में मिसाली काम कर रहे हैं। आमदन से जायद असासे और मनी लॉन्ड्रिंग केस। लाहौर हाईकोर्ट ने शहबाज शरीफ की अबूरी जमानत में 7 जुलाई तक तौसी कर दी। अदालत का 2 जुलाई को शहबाज शरीफ को इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ से कोरोना टेस्ट करवाने का हुक्म। इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ एंड साइंसेज के डायरेक्टर को शहबाज शरीफ की कोरोना की रिपोर्ट अदालत ने पेश करने की हिदायत। फर्नेस ऑयल की सप्लाई बहाल होने के बावजूद के इलेक्ट्रिक कराची के अवाम को रिलीफ देने में नाकाम। कराची में 10 से 12 घंटे की गैर एलानिया लोड शेडिंग जारी। शहरियों को न दिन का आराम न रात को सुकून। ईंधन मिलने से बिजली की फराहमी बेहतर हो गई है। रात को बिल्कुल लोड शेडिंग नहीं होती कि इलेक्ट्रिक का दावा। और अमरीकी ड्रोन हमले में जनरल कासिम सुलेमानी का कत्ल। ईरान ने अमरीकी सदर ट्रंप के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। ईरान का इंटरपोल से वारंट पर अमल दरामद का मुतालबा।